جب کبھی آپ کسی ملحد کو ان چیزوں پر بنایا ہوا دیکھیں، پریشان دیکھیں، اس کو بگڑا ہوا پائیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ شدید بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ نمبر 1، اس کو سب سے زیادہ غصہ جس چیز کے اوپر ہوتا ہے اور جس پر وہ سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے وہ ہے ریلیجن کا ریلیونٹ رہنا۔ تو اسلامک ریلیونس ان کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے، ان کو انوائے کرتی ہے، یعنی ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ مسلم اسکالرز اسلام کے فقہی اور اس کے سیاسی ڈھانچے کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سافٹ ویئر جس دنیا میں آ چکا ہے، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ ہارڈ ویئر وہی رہتا ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ یوزر فرینڈلی ہوتی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے نقطوں کے اندر آپ کی زندگیوں کے کئی سوالات چھپے ہوئے ہیں بفضل اللہ۔ اس کو چڑ چڑھتی ہے کہ مسلمان اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ مثال کے طور پر آپ سناتنیوں کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں وہ کلیوگ آ گیا ہے، سناتن وہ اس وقت کا نیم، منوسمرتی ہم نہیں مانتے، وید ہم نہیں مانتے، گیتا ہم نہیں مانتے، فلاں کتاب ہم نہیں مانتے، ایسا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہتا، مسلمان کہتا ہے قرآن آج بھی اتنا اپ ڈیٹ ہے جتنا آج سے 1400 سال پہلے تھا، اسلام کی اتنی ہی ضرورت آج بھی ہے جتنی آج سے پہلے تھی۔ یہ آپ انگلی رکھ کر بتائیں کون سے دھرم والے کے اندر یہ جرت ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم منوسمرتی کو، ہم گیتا کو، ہم ویدوں کو آج بھی اتنا ریلیونٹ مانتے ہیں یا اپنشدوں کو جتنا تب مانتے تھے۔ آپ نے کرسچنس کو دیکھا ہے، یورپ سے لے کر ویسٹ تک آپ نکل جائیں تو آپ کو بڑی تعداد میں پڑھے لکھے جو کرسچن بیبلیکل سکولرز ہیں وہ آپ کو کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اب کرسچینٹی کا پالیٹکس کے ساتھ تعلق کیونکہ سیکولر اور لبرل ہو چکے ہیں، تو لہذا پوپ کو یہ تو ہونا چاہیے کہ شادی بیاہ کرا دے، سنڈے کا لیکچر دے دے، مگر نہیں، وہ اس میں ریلیونس نہیں ہے اس کی۔ تو سب سے پہلا اٹیک اسلام کا دشمن جب وہ ملحد ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ مسلمانوں سے نا یہ جو ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے نا، اس کو شیٹر کرو، ان کو یہ چیز بتاؤ کہ نہیں 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 یار دیکھو 1000 سال پہلے کا دین لے کے آؤ گے، 1400 سال پہلے کی آسمانی کتاب لے کے آؤ گے، اور یار عرب کا ٹرائبل سسٹم، جملے سننا، جملے کیونکہ آپ کو جملے سننے کو ملیں گے، وہ ٹرائبل کلچر وہ لے کے آنا ہے آپ نے۔ اور نہیں یار اس وقت دیکھو اس وقت اتنا وہ صحرا میں رہتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ اب اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ ہتھیار ڈال دیں گے، مگر اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کن چیزوں کو اسلام نے اختیاری طور پر اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ زمانے کی گردش اور لیل و نہار کا تغیر انسانی معاشروں کو اس پیک پر لے جائے گا کہ لوگوں کے پاس احکامات کے لیے اور اسی طریقے سے دوسرے تیسرے معاملات کے لیے اختیار رہنا چاہیے۔ اسی چیز کو اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جس پر اسلام چھوڑنے کے بعد سب سے پہلا اٹیک ہوتا ہے، اگر آپ کو ایک آئیڈیالوجی کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو آپ کو ماڈرن ٹرمینالوجیز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہوگا، ورنہ تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر میں فقہی یا اسلامک وہ اصطلاحیں بولوں جو اس وقت خاص لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، مگر آج لوگوں کو وہ سمجھ نہ آئیں، آج جو لوگوں کی زندگیاں ہیں ان کے ساتھ وہ لنک کنیکٹ نہ کریں، اس کو ریلیونس کہتے ہیں، مگر ریلیونس پیدا کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے، یہ دوسرا اٹیک اس پر ہوتا ہے۔ تو وہ دوسرا اٹیک جس چیز پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسلامائزیشن آف دا آرڈر۔ ایک ملحد اور اسلام کا دشمن کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مسلمان ماڈرنزم کے مقابلے کے اندر، لبرلزم اور سیکولرزم کے مقابلے کے اندر ورلڈ آرڈر کو اسلامائزیشن یعنی اس کی اسلامک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ یہ دوسرا اٹیک ہوتا ہے، یعنی جو امت کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، یونٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، یا گلوبل اسٹرکچر انفراسٹرکچر جو اسلام انٹروڈیوس کرواتا ہے، اس تصور کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو کہتے ہیں یہ کیا امت کا تصور، امت ہے کشمیری بھائی ہے، کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اور چائنا میں مسلمان ہیں ان کے لیے آواز اٹھاؤ، ترکی کے اندر ہیں، سعودیہ میں مسلمان ان کے لیے آواز اٹھاؤ، کیا کرتے ہو؟ چھوڑو، اپنا اپنا معاملہ دیکھو۔ ایران کے لوگوں کے لیے آواز کیوں اٹھانی ہے؟ وہ تو فرق ہے نا ان میں، او ہو ان کے لیے آوازیں نہ اٹھاؤ۔ سب سے پہلے وہ جو گلوبل
इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाम नजरियाती बुनियाद पर खड़ा करता है, ये उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो मॉडर्न साइंसेज हैं या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, पॉलिटिकल या सोशल या कल्चरल, इन चीजों के ऊपर इस्लाम अपनी रूलिंग देता है। इस चीज से इनको चिढ़ चढ़ती है। इस्लामाइजेशन ऑफ द ऑर्डर इस्लाम के लिए क्यों जरूरी है? मिसाल के तौर पर ये जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, ये जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो आपका एजुकेशन का सिस्टम है, इस बुनियाद पर खड़ी होती हैं कि इनको इस्लाम किस निगाह से देखता है, इस्लाम इनके मुतल्लिक क्या राय कायम करता है, और इस्लामी मिजाज मुआशरे में किस हद तक इन चीजों को बर्दाश्त करता है, किस हद तक नहीं। सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, मुख्तलिफ इज़म्स, इस्लाम ने इन पर अपनी राय दी। उलमा ने कुरान और सुन्ना की तहकीक करके और उस तनकीद की रोशनी में दुनिया के हालात को परखने की कोशिश की। यानी इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो इस चीज के अंदर तहकीक कर रहे हैं कि मुस्लिम मुआशरों के अंदर कैसी सियासत होनी चाहिए, कैसी माशियात होनी चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, कैसी तालीम होनी चाहिए। इस पर अगर वो अपनी राय देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लामाइजेशन ऑफ द ऑर्डर या इस्लामाइजेशन ऑफ द सोसाइटी पर काम कर रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। मुल्हिदों को दूसरी चीज चुभती है, पता क्यों? क्योंकि ये पहले पॉइंट को जन्म देती है। जैसे जैसे चीजों की इस्लामाइजेशन होती जाएगी वैसे वैसे इस्लाम रेलेवेंट होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप पॉलिटिक्स को इस्लामिकली डील करते हैं तो वैसे वैसे तो शरीयत नाफिज होगी। अगर आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस्लामाइजेशन करते हैं तो उसमें तो हराम चीजों का वो जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। अगर आप पीनल कोड के अंदर इस्लामिक लॉ लेके आते हैं तो कई बिजनेसेस हैं वो ठप हो जाएंगे जो हराम पर हैं, कई धंधे चौपट हो जाएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इनको पसंद नहीं आती, क्योंकि ये इस्लामाइजेशन जो है ये एक ग्लोबली थ्रेट है इनकी नजर में। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इस्लामाइजेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में, इस दूसरे पॉइंट के ही मैं कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को रखना चाहता हूं कि ये जो मुसलमानों का एक ग्लोबल खिलाफत का कॉन्सेप्ट है, कतई नजर इससे कि इसकी तफसीलात क्या हैं, मगर ये याद रखना चाहिए कि इस्लामाइजेशन इज मोर लाइकली एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ खिलाफा। कि अगर आपने खिलाफत के इंस्टीट्यूट को इंस्टॉल करना है तो उससे पहले आपके पास इस्लामाइजेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान इस्लामिकली एक कमजोर रियासत है, ठीक है, मुसलमान वहां पर हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से चीजों को लेने की, मगर ये बात आपको मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान को इस्लामिकली रन ही नहीं किया गया। पता है क्यों? क्योंकि इस्लामाइजेशन नहीं की गई। अगर उसकी इस्लामाइजेशन की जाए प्रॉपर करारदादे मकासद के बाद, अगर उसको उसी तरीक पर रन किया जाता तो आज पाकिस्तान वो नजीर पेश कर रहा होता जो इसके बनने की बुनियाद हो सकती थी। तो ये मैंने मिसाल आपके सामने एक रखी है। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ रियासत काफी नहीं है, पॉलिटिकल फोर्स काफी नहीं है, बल्कि नीचे इस्लामाइजेशन यानी डिपार्टमेंट्स की, डिसिप्लिन्स की, कैटेगरीज की इस्लामाइजेशन जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसी फोर्स चाहिए। मिसाल के तौर पर ऊपर आप एक नेक सिफ्त खलीफा बिठा दें, नीचे लोगों को पता ही ना हो वो करप्शन हो रही है, रिश्वत ले रहे हैं, ऐसे रियासत कैसे चलेगी इस्लामिक बुनियादों पर? बल्कि ये तो उल्टा इस्लाम के नुकसान में जाएगी चीज, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है बंदा के वो अल्लाह का नाम ले, वो अल्लाह के रसूल का नाम ले, और नीचे चल रही है रिश्वत। तो लोग किसको ब्लेम करेंगे कि देखो यार इस्लाम एक फेल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, नाउज बिल्लाह। तीसरा अटैक जो मुल्हिद इस्लाम छोड़ने के बाद या कोई भी इस्लामोफोब इस्लाम छोड़ने के बाद जिस पे करता है ना, तीसरी चीज पे, वो है इस्लामिक मॉरल कंपस। इस्लाम का जो मॉरल कंपस है उसके ऊपर इतराज करता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। याद रखें, कभी भी सोसाइटी खड़ी नहीं हो सकती जिसके पीछे मॉरल वैल्यूज ना हो, वरना तो जंगल है, जानवर है। जो मॉरल कंपस है इस्लाम का, वो नेविगेट करता है, वो आपकी पोजीशनिंग सेट करता है कि आपने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, आप गलत आ गए हैं, आप ठीक आ गए हैं, ये कानून सही है या कानून गलत है, ये आलम दीन ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, ये पॉलिटिशियन सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये आर्मी जर्नल जो है ये गलत कर रहा है सही कर रहा है, ये कौन डिसाइड कर? इस्लामिक मॉरल कंपस, वो उसूल हो गए। तो तीसरा अटैक वो करते हैं स्ट्रक्चर को ढाने के लिए, जो इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो मॉरल कंपस के ऊपर। यानी वो कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के अंदर से ये जो हलालो हराम का कॉन्सेप्ट है ना, इसको निकाल दिया जाए। इंडिया के अंदर भी हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को खराब करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की।
इसी तरीके से वेस्ट के अंदर एक कैंपेन रन की गई कि ये क्यों हलाल का सर्टिफिकेशन होती है, फूड अथॉरिटी क्यों ये अलाउ कर रही है। अब जारी बात है, जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वो तो अलाउ करेगी, क्योंकि उनको तो कंज्यूमर्स को देखना है, कस्टमर्स को देखना है, उनको क्लाइंट मिलते हैं तो वो हलाल हराम को फोकस करेंगे, क्योंकि वो उनको तो मुस्लिम कस्टमर चाहिए। मगर मैं वापस आ रहा हूं इस चीज के ऊपर कि मॉरल कंपस को खराब करने के पीछे इनका मकसद ये होता है कि मुसलमानों ने जो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बताई हुई है ना, कि ओहो हो ये हराम है, ओहो हो ये हलाल है, ये नहीं मैं कर सकता, ये आपका तरीका कार गलत है, ये चीज इनको परेशानी डालती है। ये कहते हैं कि इनकी ये आइडेंटिटी इनसे छीनो, इनको हम बताएंगे कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ये तासुर देते हैं। यानी हमसे वो चीज छीनना चाहते हैं, वो इल्जाम लगाकर जो ये खुद करते हैं। मतलब हमें कहते हैं कि आपने नहीं हमें बताना कि हलाल और हराम क्या होता है, मगर खुद हमें बता रहे होते हैं। तो इसीलिए ये एक तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर ये अटैक करना चाहते हैं। मुल्हिद होने के बाद और इस्लाम छोड़ने के बाद चौथा जिस चीज के ऊपर वो अटैक करते हैं, वो करते हैं प्रोफेटिक ट्रेडिशन के ऊपर, पैगंबरी सिलसिला, अंबिया का सिलसिला, इसके ऊपर अटैक करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सोर्स हैं। आपको पता है हमारा मॉरल कंपस जिस सोर्स से आता है वो अंबिया हैं। हम अंबिया को एज अ हुज्जत और हकम और अदल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे अंबिया ने जिंदगी में ये किया, उन्होंने जिंदगी ऐसे गुजारी, इसलिए हम ये कर सकते हैं। हमारे अंबिया ने हमें ये बताया, लिहाजा हम कर सकते हैं। तो लिहाजा वो अटैक करते हैं उस जात के ऊपर, उन शख्सियात के ऊपर जिन्होंने हमारे हाथ में ये मॉरल कंपस थमाया है, प्रोफेटिक ट्रेडिशन। अब इसमें एतराज शुरू होता है आगे से लेकर एंड तक, गौर से सुनना आपने। एतराज होता है ये तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, इनके तो होने का प्रमाण ही नहीं है, हो सकता थे, हो सकता नहीं थे। यहां से अटैक शुरू होता है। यानी मुसलमानों में एक ऐसी इंस्टीट्यूट को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए जो इंस्टीट्यूट मुसलमानों को ये दीन देती है। तो लिहाजा वो अंबिया के सिलसिले के ऊपर एतराज करना शुरू कर देते हैं, फलां नबी भी नहीं थे, फलां भी नहीं, यहां से वो शुरू होता है। फिर उसके बाद अंबिया की सीरत और अंबिया के कैरेक्टर्स के ऊपर एतराज करना शुरू किया जाता है, जिससे ये तासुर मिलता है कि यार देखो तुम तो कह रहे थे ये रोल मॉडल हैं, इनमें तो ये भी नुक्स है, ये भी ऐब है, नऊज बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये चौथा अटैक होता है जो आपको अंबिया की सीरत के ऊपर, किरदार के ऊपर इनकी तरफ से आपको मिलता है। अच्छा, पांचवी चीज जिसके ऊपर ये एतराज करते हैं वो ये करते हैं कि इस पूरी की पूरी मुस्लिम और इस्लामिक सोसाइटी को एक प्रॉब्लम के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी ये कहा जाता है कि चूंकि इस्लाम ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लिहाजा इस्लाम को खत्म कर देते हैं, ये जानते बूझते कि इस चीज को खत्म करने के बाद वो चीज बैकफायर करेगी और कुछ और एतराजात सामने आएंगे जिनका सोल्यूशन इनके पास नहीं होता। इसलिए जब हम इनसे गुफ्तगू करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस्लाम छोड़ने लगे हैं, आप बताओ कि आप हमें ऑफर क्या करते हो, आपके पास चीज क्या है? एक इंसान बिना आइडियोलॉजी के, मैं उसको जानवर मानता हूं। एक इंसान बिना सेट ऑफ रूल्स के, वो जानवर है। एक इंसान बिना मोरालिटी के जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर है, बल हुम अव्वल, वो इससे भी गिरा हुआ है। पांचवी चीज ये करते हैं। छठी चीज जो आपको बहुत कॉमन दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि जब ये सारे काम करने से ये फारिग होते हैं तो फिर ये मुस्लिम जो इंसान है, मुस्लिम सोसाइटी है, उनकी कमियां, कुताइयां और आपसी इख्तलाफात को एक ऐसी चीज बनाकर पेश करते हैं कि देखो हम इस्लाम को तो मान लेते हैं मगर मुसलमानों की हालत देखो, मुसलमान तो ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, लिहाजा इसलिए मुसलमानों को इस्लाम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो ना मुसलमानों तुम्हारी हालत क्या है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है। अगर इस्लाम इतना अच्छा होता तो तुम लोग ऐसे होते? नाउज बिल्लाह। ये कहते हैं एक आदमी अगर बुरा निकल आया है, उसके वालिदैन को नहीं कोसा जाता, उसके माँ बाप को सजा नहीं दी जाती, बल्कि उस आदमी को दी जाती है। ये 6 नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं इब्तदाई तौर पर बड़ी तेजी के साथ, ताकि आप समझ सकें कि चीजें इनसे बाहर नहीं निकलती। ये 6 की 6 चीजें जो अभी मैं आपके सामने रख चुका हूं, ये जन्म देती हैं एक ऐसे मुल्हिद को जिसको मैं मुल्ला मुल्हिद कहकर मुखातिब करता हूं। मुल्ला मुल्हिद, उसके पीछे वजह क्या है याद रखना चाहिए। इस्लाम उलामा को इंट्रोड्यूस करवाता है। यहां जब मैं मुल्ला वर्ड बोलूंगा तो बेसिकली ये वर्ड मेरा
उन लोगों के बराबरी या उन लोगों की लाइन में बोला जा रहा है जो दीन को धंधा बनाते हैं, इस्लाम को मजहब बनाकर मजहब फरोशी करते हैं और लोगों के ईमान को ठगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर बयान किया था, और बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, इन्होंने अपने रैबाइज को, अपने पादरियों को, पंडितों को, गुरुओं को और मुल्लाओं को अपना रब बना रखा था। पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा कि जिसको वो हलाल कहते थे तुम हलाल कह लेते थे, जिसको वो हराम कहते थे तुम उनको हराम मान लेते थे। इससे एक चीज पता चलती है कि एक पेशा था हमारे से पहली कौमों के अंदर, जो पेशा मजहब फरोशी के नाम पर बनाया गया था। सदाए मिंबर महराब इससे खुदा की पनाह के इससे साजे चंगोर रुबाब बेहतर है, और हरम फरोश फकीहों के हौदे कौसर से मुगन्निया के लबों की शराब बेहतर है। नाउज़ बिल्लाह। शेर बड़ा खतरनाक है, मगर तनकीद है इसमें उन पेशा वाराना मजहब फरोश लोगों के खिलाफ जो इस्लाम के नाम पर धंधा करते हैं और इस्लाम फरोशी का काम नाउज़ बिल्लाह करते हैं और रसूलुल्लाह और इस्लाम से दुश्मनी करते हैं और आपकी उम्मत को धोखा देते हैं, फिरका परस्ती के नाम पर, फतवाबाजी के नाम पर, और बिदआत और खुराफात और बद रसूमात के नाम पर, बद एतकादियों और ज़ैफुल एतकादियों के नाम पर, शोबदाबाजियों के नाम पर कोई हरकतें करते, इनको मैं मुल्ला कहकर मुखातिब करता हूं। अब आपको सोचना चाहिए कि अगर यहूदियों में रैबाई थे, मसीहियों में ऐसे पादरी हैं, हिंदुओं में ऐसे पंडित हैं, गुरु हैं, और मुसलमान मुआशरों के अंदर कुछ ऐसे मुल्ला हैं, तो क्या मुल्हिदों के अंदर कोई नहीं होगा? तो आज मैंने इस एपिसोड का नाम इस बुनियाद पर मुल्ला मुल्हिद रखा है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इल्हाद का धंधा किया और मजहब के खिलाफ एक धर्म मजहब बनाकर उसकी फरोशी की। यही वो लोग हैं मुल्ला मुल्हिद। जिस तरह वो धर्म फरोशी करते हैं, दीन फरोशी करते हैं, इसी तरीके पर ये इल्हाद फरोशी करते हैं। जैसे वो चीजों में तहरीफ और तबद्दुल और तगय्युर करके लोगों के ईमान पर ढके डालते हैं, उसी तरह ये लोग दूसरे धर्मों के कीड़े निकालकर, दूसरे समाज को नुकसान पहुंचाकर, नफरत का बीज बोकर और झूठ फूट बातें करके, बहतान लगाकर लोगों के ईमान को भी ठगते हैं और उनकी जेबों पर भी डाके डालते हैं। रिक्वेस्ट प्लीज स्क्रीन पे आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने में शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी।